Well, this was everything what I did with Xpulse in 2021. It's been exact 365 days and 15,000 kilometers on this bike. Lightweight, under budget and easy to maintain, but there is a lot more before you make a decision to buy this bike. So today, we're gonna be reviewing Xpulse 200 after exact 1 year. I'm Yasir, you're with MotoZoomer. So let's start with the good things. The first thing we're going to be talking about is the performance. And performance की बात से पहली बात जो आती है वो आती है इंजन की. So the engine is 200 cc. अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये इंजन पावरफुल है? Does it have enough power? Highway पे it's fine, but as you go on the mountains, as the incline begins at the steepest point, this is going to cry. This engine does not have that much power. आपको पहले दूसरे गियर पे रह के ही पूरी की पूरी बाइक ऊपर खींचना पड़ेगी. मेरे साथ हुआ है उत्तराखंड और हिमाचल दोनों जगह. It was not a very good experience, but still I was fully loaded. If you're not carrying a pillion or luggage, it's fine, you can do it. When it comes to performance, second thing is definitely the suspensions. So the suspensions are super nice. So these are the stock suspensions. I don't have the rally kit right now. Rear one are tunable, but the front suspension is not. So you cannot tune the front suspension in the stock kit. बट रैली किट में आप दोनों ट्यून कर सकते हैं, फ्रंट एंड बैक बोथ. द ओवरऑल फील ऑफ द सस्पेंशंस आर रियली नाइस. अगर गड्ढे हैं, पॉट होल्स हैं, इवन सम ऑफ रोड ट्रैक, यू कैन ईजिली पास थ्रू, आराम से निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी. रेयर सस्पेंशन में भी आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा. आई हैव एडजस्टेड इट ऑन अ सॉफ्टर साइड बिकॉज मेरा वेट थोड़ा सा कम है. सो थोड़ा सा सॉफ्ट सस्पेंशन, इट्स गुड फॉर मी. ओवरऑल द हाइट ऑफ द बाइक, आई एम 5'8" एंड दिस इज़ द हाइट. अभी I'll talk about a different thing there. That is another part. This bike looks smaller in picture, but this is not a small bike. It is a slim bike, but not a small bike. For a person like me, I have always preferred lighter bikes. I like this bike. It is very light, very agile. You can take it anywhere. Literally, you can rip around any single trail out there. Another good thing about this bike are the brakes. Both of the brakes are provided by Nissin. Braking power is quite good, but the ABS is only at the front channel. सो पिछला व्हील कभी कभी लॉक हो जाता है, कभी कभी नहीं, अक्सर ही लॉक हो जाता है. जब ABS नहीं है तो लॉक तो होगा ही, बनी बात है. एंड दीज टायर्स लूज ग्रिप वेरी इजीली ऑन टारमैक. दिस बाइक ऑल्सो फीचर्स किक स्टार्ट. अगर आपकी बैटरी खत्म हो जाए या डेड हो जाए तो एक किक मारिए और अपने रास्ते पे चलते बनिए. दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक बैश प्लेट्स इन द मार्केट राइट नाउ. एल्यूमिनियम की है और इसने बहुत सारे टक्कर पत्थर सब झेले हैं एंड इट्स स्टिल गोइंग गुड. सो आई थिंक this hits all 10 on 10 points. And being an adventure friendly bike, this bike has a lot of mounting points, lot of these things. Plus it's really designed to go anywhere. By anywhere I mean you can actually ride it in the city and take it on a trail next day, and you can munch on highways. I've done that. But अगर आप 120-130 पे cruise करना चाहते हैं highways पे, so this is going to be very difficult with this bike because 100 is fine, but anything above 100 it will struggle. Seat is okay. If you are experienced enough, you will find it okay. This is relatively a harder seat, but this has a purpose of giving you feedback while you're riding off road, because आपको off road में feedback की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. It's not that comfortable, but after certain time it gets softer and मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है सीट में, because this is more or like same as Duke 390 seat. इसकी जो कंसिस्टेंसी है वैसी ही है. So this is quite good. The color is also top notch. अभी तक कुछ नहीं हुआ है. The handlebar is very sturdy. I've dropped it quite a few times. Still nothing happened. This thing came out, but ये 5 रुपये या 10 रुपये का मिलता है सर्विस सेंटर पे. This just pops out and you can plug it in. This is shared with the Passion Pro. These things, the scratch marks you are seeing here are from Uttarakhand. उत्तराखंड में अब गाड़ी स्लिप हुई थी तब के स्क्रैच मार्क्स हैं. These things work really fine. Everything else is just good. सारी बातें एक तरफ, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि भाई साहब ये देती कितना है, 15,000 किलोमीटर, और मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से इस बाइक ने निकाला है 35 का एवरेज. दिस इंक्लूड्स ऑल द राइड्स इन द माउंटेन्स, ऑल्सो ऑन द प्लेन्स. 800-900 किलोमीटर की हाईवे जर्नी, सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें. सो विच इज़ नॉट बैड एट ऑल. आई हैवंट रियली फेस्ड एनी बिग प्रॉब्लम एक्सेप्ट दैट throttle cable snapped off, but that's a very common problem that happens with every bike. I was an idiot, I wasn't carrying a throttle cable. So as such ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं है. this bike is still going good. अगर आप इसको उठा के हिमालयन या फिर डोमिनार या फिर एडवेंचर 390 से कंपेयर कर रहे हैं तो इट्स नॉट गोना बी फेयर, बिकॉज एक तो हाफ ऑफ द प्राइस, प्लस इट्स नॉट रियली दैट काइंड ऑफ बाइक. अगर आप इस बाइक में रैली किट डाल देते हैं तो मेरे हिसाब से एडवेंचर 390 और हिमालयन और कोई भी बाइक आप ले आइए, इस बाइक को नहीं पकड़ पाएगी ऑफ रोड में, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीम फन. दिस बाइक इज़ फन. द अदर वर्ड फॉर दिस बाइक इज़
fun. अच्छाई का कभी न कभी बुराई से सामना तो होता ही है. So now it's the time to talk about the bad things and the problems that I faced with this bike during this time period. So we'll start with the main stand. This main stand is actually very useful, but it decreases the ground clearance और off roads पे ये टकराता ही टकराता है. Second thing that I faced is the side stand. Side stand जो है वो धीरे धीरे करके झुकता चला जा रहा है. I have no idea if the joint from the chassis is tilting or maybe the side stand is tilting. I don't have other side stand for the reference. जैसे ही अब रिप्लेस कराएंगे इस सर्विस में तो मैं कंपेयर करके देख लूँगा कि आखिर ये टेढ़ा हो क्या रहा है. अगर फ्रेम टेढ़ा हो रहा है तो फिर तो बहुत ही बड़ी दिक्कत की बात है, बट अगर स्टैंड टेढ़ा हो रहा है तो इट्स ओके, इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव. एंड स्ट्रिक्टली मैं अपनी बाइक में किसी को बैठने भी नहीं देता हूँ साइड स्टैंड पे, तो फिर कोई बात बनती ही नहीं है कि किसी के बैठने से वो टेढ़ा हो गया है. द फुट पेक्स आर वेरी स्मॉल एंड इफ़ यू हैव लार्जर फीट, अपना तो खैर 8 नंबर जूता है तो चल जाता है, बट अगर आपका पैर थोड़ा सा भी बड़ा है तो इन फुट पेक्स पे आपको अपना पैर टिकाने में बहुत दिक्कत होगी. पीपल आर अप्लाइंग रॉयल इनफील्ड हिमालयंस फुट पेक्स इन दिस बाइक. थोड़ा सा मॉड करना पड़ता है, बट हिमालयन के फुट पैक्स ज़्यादा चौड़े हैं एंड आपको ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करते हैं जूता रखने के लिए, शू रखने के लिए, और आराम से आपका काम भी बन जाता है. मतलब सांप भी मर जाती है और लाठी भी नहीं टूटती, ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है. नोट माई वर्ड्स, हेडलैम्प इज़ अ कम्प्लीट क्रैप. सामने से अगर गलती से भी कोई बाइक, स्कूटर, कार कुछ भी आ गया तो फिर ये हेडलैम्प ख़त्म हो जाएगा, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा. यू नीड एन ऑक्सिलरी लाइट इन योर बाइक जिससे कि आपको सामने का कुछ दिखाई दे. वैसे भी आई ऑलवेज रिकमेंड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस ऑलवेज हैव ऑक्सिलरी लाइट. बहुत काम आती है, खुदा ना खास्ता कभी रात को ट्रैवल करना पड़ जाए तो फिर इट इज़ अ लाइफ सेवर. इस बाइक का जो गियर शिफ्ट सेंसर है वो बड़ा ही मूडी है, कब आ जाए और कब चला जाए कोई भरोसा नहीं है. प्लस जब आप गियर बदलेंगे तो उसके थोड़ी देर बाद बाइक को याद आता है कि भाई साहब गियर तो बदल चुका है, तब वो डिस्प्ले पे आता है. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम बट दैट डिले रियली किल्स द वाइब. मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी देखिए कि भैया गियर अब बदला है चौथा और सामने अभी 3 ही दिखा रहा है, थोड़ी देर में वो 4 हो रहा है, तो दैट्स नॉट नाइस. आई नो ये पॉइंट बहुत से लोगों को अननेसेसरी लगेगा, बट द ब्रेक पार्ट्स आर एक्सपेंसिव एंड द लाइफ इज ऑल्सो नॉट गुड. बोथ ऑफ द ब्रेक पार्ट्स आर प्रोवाइडेड बाई निसिन, बट ये ब्रेक पार्ट्स लगभग 3,000 रुपये के हैं आगे और पीछे का सेट. 13,000 किलोमीटर ऑन सच लाइट बाइक आई थिंक कि थोड़ा सा तो महंगा है, थोड़ा सा नहीं, ये अच्छा खासा महंगा है. 3,000 रुपये का पेयर आई डोंट थिंक इट जस्टिफाइज. बट अगेन एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इट इज़ हीरो एंड रिप्लेसमेंट्स आर अवेलेबल. मार्केट में 250-250 रुपये के भी ब्रेक पार्ट्स मिल रहे हैं, बट द ब्रेकिंग पावर इज नॉट दैट गुड. While I was going to Ladakh, my rear brake pads went off. So रास्ते से I got ऐसे ही टेम्परेरी जुगाड़ के ब्रेक पैड 250 रुपये के, बट द ब्रेकिंग वॉज नॉट गुड एट ऑल एंड माई डिस्क वॉज क्रिएटिंग वेरी स्क्रीची नॉइस. So I don't recommend putting third party brake pads unless and until it's CBC or something, but again I think it's a bit expensive. बाइक में सामने 21 इंच का व्हील है, पीछे 18 इंच का व्हील है. उत्तराखंड से वापस आने के बाद मुझे अपनी बाइक को टूरिंग के लिए देना पड़ गया था क्योंकि फ्रंट व्हील जो है वो डग कर रहा था एंड उस पर एक छोटा सा बेंड भी था. अगेन आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम लद्दाख आई फील लाइक कि अगला व्हील फिर से डग कर रहा है एंड उस पर भी एक छोटा सा डेंट है. क्वालिटी अगर थोड़ी और अच्छी होती तो और मज़ा आता. लेट्स सी सर्विस में क्या बोलते हैं, इसका अपडेट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा. अगला टायर तो एग्जैक्ट हिमालयन के जैसा है, बट पिछला जो टायर है वो क्यों बनाया है सीएट ने ऐसा. पिछले टायर के बीच में दिया गया है एक रिंग जिसको सीएट बोलता है कि हमने हाईवे पे आपका माइलेज इंप्रूव करने के लिए दिया हुआ है. जब टायर नया रहता है तो उस पर रहते हैं ब्लॉक्स एंड वो ब्लॉक्स प्रॉपरली ऑफ रोड में ग्रिप बनाते हैं, बट जब टायर 5 या 6,000 किलोमीटर चल जाता है तब वो ब्लॉक्स हो जाते हैं गायब और ये जो छल्ला है, जादुई छल्ला, बीच से निकल के आता है बाहर एंड दिस थिंग लिटरली किल्स ऑल द ट्रैक्शन ऑन मड और ग्रेवल. अगर आप सीधे सीधे चल रहे हैं तो व्हील स्पिन होगा बाकायदा क्योंकि सेंटर लाइन तो फ्लैट हो चुकी है. साइड्स पे आपको थोड़ी बहुत ग्रिप मिलेगी, ऑल्दो इट्स गुड ऑन टारमैक, बट अगेन टर्न्स पे तो साइड ही जाना है, तो साइड में कुछ है नहीं हाईवे के लिए, बीच में आपने एक रिंग दे दी है, तो दैट आई डोंट थिंक कि दैट्स अ गुड मूव. ऑल्सो द टायर्स आर नॉट ट्यूबलेस, सो बी रेडी टू रिपेयर द पंक्चर. आई रिपेयर्ड इट वंस ड्यूरिंग द ट्रिप. I carry a puncture kit. Also, I have learned how to fix a puncture. ये ट्रेनिंग मिलेगी आपको पंक्चर वाले के पास. फर्स्ट 10,000 किलोमीटर्स ये मिरर बहुत अच्छे थे, बट आफ्टरवर्ड्स ये साइड से हो गए ढीले और इनको टाइट करने का कोई भी तरीका नहीं है. वंस दे आर गॉन सो वी हैव टू चेंज देम, विच इज़ अ मेजर ड्रॉबैक फॉर दीज मिरर्स. Now coming to the biggest problem that I faced with this bike, which is a very recent problem. The engine head is leaking oil and this is
very concerning. So when I was coming back from my latest trip, I went to my hometown. I was coming back, I noticed this residue on the engine, and जब मैंने इंस्पेक्ट किया तो I found out कि भाई साहब उधर तो पूरा का पूरा तेल ही बह रहा है ऊपर से. It's not that much and the bike is not losing engine oil that much, but still वहाँ पे ऑयल है. सो आई हैव टू गेट इट चेकड इन द नेक्स्ट सर्विस, और नेक्स्ट सर्विस लगभग आ चुकी है. सो आई विल बी गिविंग दिस बाइक इन सर्विस मोस्ट प्रोबेबली टुमारो, एंड आपको अगले वीडियो में अपडेट देता हूँ मैं कि ये फिक्स हुआ या नहीं हुआ. नाउ लेट्स गेट बैक and I'll tell you something good as well. Warranty is 5 years which is excellent. 1.5 लाख की बाइक पे 5 साल की गारंटी. अभी ये इंजन हेड पे काम आया है ना, तो मेरे को इतना लोड नहीं है बिकॉज द बाइक इज कवर्ड अंडर वारंटी. बट ऑन द अदर हैंड द RSA इज पैथेटिक. पहाड़ों पे तो RSA है ही नहीं हीरो का, बिकॉज सर्विस सेंटर्स ही नहीं है एंड कॉल लगता ही नहीं है बिकॉज पता नहीं नंबर ऑफ है क्या है. आई हैव मैसेज देम ऑन ट्विटर बट दे सेड कि दे आर गोना लुक into the matter, but still it's not fixed. So RSA के भरोसे मत रहिए, कुछ नहीं होने वाला. Also अभी मेरी बाइक में लेग गार्ड नहीं है. The leg guard I was using was really heavy, थोड़ा सा बड़ा था वो. So I'm going for something smaller, maybe stock or maybe something else which is a little bit lighter than that heavier one. So what is my final verdict on this bike? This bike is one of the best bikes that I have ever owned till date. एंड इतनी हल्की बाइक और इस सेगमेंट की बाइक अभी तक इस मार्केट में तो एग्जिस्ट करती नहीं है. सो देर इज़ नो अदर ऑप्शन. आई विश कि हीरो एक और बाइक निकाल दे थोड़ी सी और पावरफुल. सो आई विल सेल एवरी सिंगल बाइक आई ओन एंड आई विल गेट दैट वन बाइक दैट्स गोइंग टू बी माई वन बाइक गैराज. नाउ इट्स द टाइम टू आंसर योर क्वेश्चंस एंड इट्स वेरी ऑकवर्ड टू शूट इन फ्रंट ऑफ पीपल. सो या, as we have reviewed the bike, now it's the time to answer your questions. Xpulse luggage system, the one that you used. So ये जो luggage accessories वाला हिसाब किताब है, ये अगले वीडियो में आने वाला है. It's gonna be very detailed, so stay tuned. भाई सिर्फ भोपाल के लिए कैसी है बाइक? It's amazing for any city out there. खरीद डालो. Did you face any oil leakage issues on engine head at high speeds? Yes, it did and I explained it in the video. I think ऊपर की जो गैसकेट है ओनली वो गई हुई है. सो अगर ऐसा हुआ तो it's gonna be an easy fix. Although it's not covered under warranty. Any of the gaskets in the bike are not covered under warranty. So उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा. 200-250 रुपये की आती है. Let's see कितना देती है वो वीडियो में है. Is it really compulsory for a tourer to have a bike which could do 100+ kmph on Indian roads? So let me be very clear. 100+ kmph होना बाइक में बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए. अब इसका मैं आपको रीज़न देता हूँ. द थिंग इज़ द एक्सेलरेशन. यूजुअली 100+ अगर आपकी टॉप स्पीड है तो उसके ऊपर कुछ भी ओवरटेक करने के लिए आपको नहीं बचेगा. एंड खुदा ना खास्ता आगे कुछ स्लो चीज़ पड़ गई आपकी तो आप 80 में फंस के रह जाओगे, आप ओवरटेक भी नहीं कर पाओगे. दैट इज़ वाई इट हेल्प्स टू हैव अ पावरफुल बाइक. बट डूइंग 100+ ऑन इंडियन रोड्स अदर देन 4 lanes, आई थिंक इट्स नॉट नेसेसरी बिकॉज कहीं से भी कोई भी आता है एंड इट्स वेरी रिस्की. सो 100 इज़ मोर देन इनफ एंड मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हैव स्पीड लिमिट ऑफ 100 ओनली. सो स्पीड लिमिट के अंदर रहते हुए अगर आप अपना काम कर पा रहे हैं तो क्या बात है. मैं तो उनमें से हूँ जो कि भाई हाईवे पे पूरे दिन 120 भी कर सकता है और कभी कभी मैं 20 किलोमीटर चलता हूँ तो मैं 50 की स्पीड से भी चलता हूँ. सो इट रियली डजेंट मैटर इफ़ इट डज 100+ किलोमीटर्स ऑल डे, बट इट रियली हेल्प्स. डू यू फील इट्स अंडर पावर फॉर द माउंटेन्स और वॉज इट इनफ? द फर्स्ट थिंग दैट आई सेड वॉज दिस वन. यू हैव योर आंसर. Pillion seat comfortable for long rides, comfortable cruising speed. It's not comfortable at all. It's not even comfortable for the rider. अगर आप किसी नैरो सीट वाली बाइक से अपग्रेड कर रहे हैं तो इट्स गोइंग टू बी ओके फॉर यू. बट इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ वाइडर सीट सच एज एक्टिवा और समथिंग, then it's going to be super annoying for you because this is not comfortable at all. The comfortable cruising speed is around 90 to 95 or maybe 100. अगर आप दो लोग हैं तो फिर वो 100 के बाहर जाने में तो वैसे ही हाथ खड़ी कर देगी बाइक. सो आई गेस 90 to 95 द स्वीट स्पॉट. दोनों बाइक आपकी पर्सनल यूज़ के लिए ही हैं क्या? एक्सपल्स एंड ये एब्सोल्युटली येस. बोथ ऑफ द बाइक्स आर फॉर माई पर्सनल यूज़. आई हैव अनदर वन विच इज़ ट्विस्टर 100. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन माई इंस्टाग्राम और ऑन यूट्यूब. अगर आप नई वाली एक्सपल्स लेते तो कौन सा कलर लेते? भाई साहब मेरा फेवरेट है ब्लू ब्लैक. अगर मेरे टाइम पे आई होती तो शायद से मैं यही कलर लेता. सो माई सिलेक्शन इज ब्लू ब्लैक. व्हाट मॉडिफिकेशंस यू हैव डन इन एक्सपल्स फॉर लॉन्ग टूरिंग? ये जो है ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. बट इन शॉर्ट आई हैवंट डन मच. सो नेक्स्ट वीडियो देखिए, उस पर आपको पता चल जाएगा. आई हैव एक्सपल्स लद्दाख के लिए स्टॉक गाड़ी सही है या कुछ काम कराऊँ? सो द आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू. दिस इज ऑलमोस्ट स्टॉक एंड दिस इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फॉर लद्दाख. लीजिए और लेके जाइए. आपके पास तो ऑलरेडी है तो आप चाहिए. एक्सपल्स और आरी हिमालयन विच वन इज बेटर? ये क्वेश्चन बहुत ही कंट्रोवर्शियल है एंड आई सीरियसली डोंट वांट टू आंसर दिस. बट मेरा ओपिनियन ये है भाई साहब
कि हिमालयन अलग टाइप की बाइक है, एक्सपल्स अलग टाइप की बाइक है। आप एक मोटोक्रॉस बाइक को एक एडवेंचर टूरर बाइक के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इट्स नॉट अ प्रॉपर मोटोक्रॉस बाइक बट इट इज़ डिज़ाइंड लाइक दैट। हल्की फुल्की कहीं भी कुदाते फिरो वाली बाइक है ये। एंड हिमालयन इज़ अ सीरियस एडवेंचर बाइक। हिमालयन को आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, पूरे दिन 120 पे चला सकते हैं, वो आराम से चलेगी। दिस बाइक वोंट डू अबव 100 ऑन हाईवेज नाइसली। बट अगर आप ट्रेल्स पे जाते हैं और ज़्यादा उछल कूद करने की सोचते हैं तो एक्सपल्स इज़ गोइंग टू आउट रन हिमालयन बाई अ ह्यूज मार्जिन। और रैली किट के बाद तो भाई साहब हिमालयन दूर दूर तक कहीं नहीं आ पाएगी इफ़ यू आर राइडिंग इन on trails specifically. But all rounder, as an all rounder, I'll always prefer Himalayan because Himalayan touring के हिसाब से Himalayan is one of the best bikes in the market right now. Xpulse is more like a tourer, trail bike and a daily driver. But again, प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इंजन्स में बहुत ज़्यादा फर्क है। दे आर 2 डिफरेंट कैटेगरीज, सो इट्स बेटर नॉट टू कंपेयर। बोथ ऑफ देम आर ग्रेट बाइक्स। खारदुंगला पे पावर ड्रॉप हो रहा था क्या, और मेन स्टैंड जो लगा है समटाइम टच हो जाता है, तो खारदुंगला पे तो नहीं फील हुआ बट केला पे येस देयर वाज अ ह्यूज पावर ड्रॉप। उत्तराखंड में एट सम प्लेसेस नियर जीबी देयर वाज ह्यूज पावर ड्रॉप एंड मेन स्टैंड टच होता ही होता है। आई हैव ऑलवेज सेड इट इन द वीडियो। मेंटेनिंग एन एक्सपल्स, दिस हैज़ अ वेरी स्वीट आंसर। जैसे आप हीरो की पैशन और स्प्लेंडर को मेंटेन करते थे, ये उससे थोड़ा सा महंगा है। सर्विस है 415 रुपये की इंक्लूडिंग ऑयल चेंज। फ्री सर्विस की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपकी फ्री सर्विसेज ओवर हो जाती हैं तो 450 रुपये सर्विस चार्ज है एंड उसके बाद भी कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है इसका मेंटेनेंस। दिस बाइक इज सुपर सुपर चीप टू मेंटेन, एज गुड एज एनी अदर कम्यूटर इन द मार्केट। सो बहुत बहुत ही शानदार है। वारंटी जो 5 साल की है ना, वो सोने पे ऐसे सुहागा है। सो दिस इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, डोंट वरी अबाउट इट। इंजन ऑयल यू यूज़ एंड फ्रीक्वेंसी। सो इंजन ऑयल मैं स्टॉक हीरो का यूज़ कर रहा हूँ अभी तक, और मैं 2500 से 3000 किलोमीटर के बीच में बदल देता हूँ। सो आई गिव माई बाइक फॉर सर्विसिंग एवरी 2500 और मे बी 3000 किलोमीटर्स। उसके बाद इस ऑयल को अपन कर देते हैं चेंज। सो अभी तक तो बढ़िया चल रहा है। अब अगली बार से आई ट्राई टू पुट इन अ सिंथेटिक ऑयल। सो आई एम ट्राइंग टू डू अ लॉन्ग रन में डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल वाला कंपैरिजन। आई हैव ऑलरेडी डिड हीरो का ऑयल, नाउ आई हैव टू डू अनदर सिंथेटिक ऑयल फ्रॉम द मार्केट, मोस्ट प्रोबेबली रेप्सॉल और मे बी कैस्ट्रॉल। So we'll see that. And yes, I have only got it serviced at the dealerships because services free थी and the services were quite good. Network बहुत अच्छा है हीरो का, so it works. So I hope you guys liked this video. If you did, then hit the subscribe button. And अगर कुछ questions हैं तो लिख दीजिए comment box में, मैं आपके आंसर कर दूंगा अगले वीडियो में. Also in the next video I'll be telling you about the accessories that I have installed in this bike, and जो भी है, जितनी भी एक्सेसरी सामान है जो भी, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो यू कैन चेक इट आउट, यू कैन बाय इट फ्रॉम Amazon, दैट्स एन एफिलिएट लिंक, इट्स गोना हेल्प मी आउट. आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू. इफ इट प्रोवाइडेड यू अ लिटिल बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ वैल्यू, देन डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन. ऑल्सो बहुत से लोग हैं जो अभी भी वीडियो देख के कट लेते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा. बाकी सब चकाचक है. अब मैं थोड़ा सा परेशान हो रहा हूँ क्योंकि लोग मेरी तरफ घूर घूर के देख रहे हैं. मैं चला घर, भूख भी लगी है. टेक केयर एंड राइड सेफ. आई विल सी इन द नेक्स्ट व्लॉग. नेक्स्ट व्लॉग इज गोइंग टू बी अबाउट द एक्सेसरीज. सो या बाय. आज मेरा जन्मदिन मेरा जन्मदिन.